Now, a new chapter we are starting with, that is enhancement of food production. Now, what is the population of India now? About 140 crore. During independence, it was hardly 30 crore या 20 crore. बहुत कम था. Now, इतना ज़्यादा बढ़ गया, say about 140 and 20 multiply by अगर हम लोग 7 करते हैं तो 140 7 टाइम इतना पॉपुलेशन बढ़ गया इंडिया का, and it is still increasing. So हमारा जो कल्टीवेशन है फूड प्रोडक्शन वो इम्पोर्टेंट है. अभी पॉपुलेशन बढ़ाना और केयरिंग अबाउट द फूड ये दो अलग चीज है, दो इम्पोर्टेंट चीज है. अगर पॉपुलेशन बढ़ता है तो डिमांड बढ़ता है. ह्यूमन बीइंग कहाँ पे रहेगा जमीन पे, तो फिर घर के लिए जगह होना चाहिए, है ना, स्पेस. देन उनके लिए फूड होना चाहिए, देन उनके लिए क्लॉथिंग होना चाहिए. एटलीस्ट फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर. अकॉर्डिंग टू Mahatma Gandhi, food, clothing, and shelter are the three basic needs of human being. Apart from that, water is also essential. Nowadays, we all are facing a problem with scarcity of water. बड़े बड़े टावर्स में कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है तो वहां पे वाटर 24 आवर्स दिया है. So if this is the case, then how will you get water? तुम लोगों को घर पे टाइमिंग में आता रहेगा पानी, है ना. Everyone gets water in a particular timing. उसमें जितना भर के रख दिया. You store water. So food, clothing, shelter, water, all these things are important. Now, we need to prepare food in a different way, such a way that you will be self-sufficient for having food. What are hybrids plants? Can you recall? Okay. Different examples of microbes used in household production. Types of groups of organisms or groups of organism which produces antibiotics. What are biofertilizer? What is the source of silk thread? तो ये सब हमने स्टडी किया. जो हम लोग खाना खा रहे हैं उसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए. हम लोग जो चावल खाते हैं उसमें प्रो विटामिन ए होता है. आजकल जो फूड प्रोडक्शन बना है, व्हाट इज प्रो विटामिन ए? प्रो विटामिन ए नेचुरल विटामिन ए को बनाता है तुम्हारे बॉडी. अभी अगर तुम चावल खाते हो, थोड़ा सा चावल खाओगे, बॉडी के सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएंगे. तो वी वांट द ह्यूमन बीइंग टू ईट लेस but more nutritious. The food which we are eating should be nutritious. उसका न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छा होना चाहिए, वो क्वांटिटी कम होना चाहिए, सो दैट सबको मिलेगा. आजकल देखो डाइटिशियन वो लोग सिखाते हैं हम लोगों को कितना खाना चाहिए एक टाइम पे और कितना नहीं खाना चाहिए. when you have a belly, मतलब तुम्हारा पेट अगर आगे है, इसका मतलब your input is more than your requirement. तुम्हारे नीड से ज्यादा तुम्हारा इनपुट है, तो उसको कम करो. Now, food is one of the basic need as it gives us energy for everything. It keeps us alive. ये हम लोगों को जिंदा रखता है. Strong and healthy. हम लोगों को strong रखता है, हम लोगों को healthy भी रखता है. It can be defined as anything solid or liquid. ये वो कुछ भी हो सकता है, जो solid भी हो सकता है, liquid भी हो सकता है. Which when swallowed, जब हम अंदर लेते हैं, निगलते हैं, swallowed, digested and assimilated in the body. Digested matlab it is broken into simple particles. Assimilated matlab it is taken from, it is absorbed, blood में जाना, blood में जाके cells में जाना, cells से each and every part of cell. जैसे तुम्हारा बॉडी में कैमरा है ना, कैमरा तुम्हारे बॉडी में, आंख तुम्हारा कैमरा है. जो खाना खाया तुम्हारा आंख बन गया. जो बॉडी सो इंटेलिजेंट ना. फिर क्या दिया है? Body keeping us well. It is organic. Organic मतलब made up of carbon. Energy rich, non-poisonous, edible. Edible मतलब which can be eaten. जिसको हम खा सकते हैं, उसको edible बोलते हैं. Nourishing substance. तो nourishing substance भी होता है जो nourish करता है तुम्हारी body. Now green plants. अभी green plants के बारे में तो हमने बहुत पढ़ा है ना. Green plants synthesize their own food through photosynthesis. Green plant अपना खाना खुद बनाता है by the process of photosynthesis. But animals, including human, cannot synthesize their food on their own. Hence are dependent on plants directly. जिससे वो plant पे directly dependent है. The famine is responsible for death of food. Famine मतलब मालूम है ना? क्या बोलते हैं हम लोग उसको मराठी में? दुष्काल, राइट? मराठी में इसको दुष्काल बोलते हैं. खाना ही खत्म हो गया है ना, बारिश ही नहीं हुआ,
but we have an idea. We can collect rainwater harvesting and वो water को हम लोग use कर सकते हैं. We can use this water also. Responsible for death of इधर देखो spelling लिखा है deer, dearth लिखा है ना, death होना चाहिए. और food beside the rapid and dramatic increase in the world population over the time. To meet the increasing demand for food, there is a need for improvement of food production. अगर हमको फूड ज्यादा बनाना है, उसका इम्प्रूवमेंट भी करना चाहिए प्रोडक्शन. Both the quantity wise and quality wise, nutritive. Plant breeding and animal breeding helps us increasing the food. Plant breed करना, breeding मतलब क्या? The mating between the male and female partner. Okay, तो that अगर plant है तो वो produce करेगा flowers, seed, fruits. And अगर वो animal है तो it is going to, जिससे क्या होता है, अगर समझो बर्ड है, चिकन है, तो तुमको अंडा मिलेगा, है ना, तुमको मीट मिलेगा, कितना कुछ मिलेगा ना. अभी हम लोग प्लांट ब्रीडिंग की बात करते हैं. देखो प्लांट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर एनिमल भी बनाते हो ना तो एनिमल डिपेंड्स ऑन प्लांट ओनली. नाउ द इम्प्रूवमेंट और द पर्पसफुल मैनिपुलेशन इन द हेरिडिटी ऑफ क्रॉप्स and production of new superior varieties of existing crop plants constitute what is called as plant breeding. समझा? हम लोग दो प्लांट सेलेक्ट करते हैं जो बेटर क्वालिटी के हैं, और उनका क्रॉसिंग करने के बाद, ब्रीड करने के बाद हम लोग को मिलता है एक नया प्लांट या एक सुपीरियर वैल्यू. और उन सारे प्लांट्स में, सीड में से जो सबसे अच्छे क्वालिटी वाला है, जो सुपीरियर है, उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं. तो हम लोगों को बेटर क्वालिटी के प्लांट मिलते हैं जिसको जल्दी बीमारी वगैरह नहीं होता है. It is in fact an art and science of changing and improving the heredity of plant. तो ये कला है प्लांट की हेरिडिटी को इंप्रूव करना. It is therefore an applied branch of botany. Botany, study of plants को botany बोलते हैं. It is in fact an art and science of changing and improving the heredity of plant. It can be carried out by using applications of principles of genetics. जो हम लोग genetics पढ़ते हैं ना, DNA and all that, उसके प्रिंसिपल को हम लोग अप्लाई करेंगे हमारे फायदे के लिए. तो जेनेटिक्स को यूज करेंगे. टेक्सोनॉमी जो हमने पढ़ा है 11th में, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें हम लोग यूज करेंगे. ठीक है? डू यू नो, स्टडी करते हैं अभी. डू यू नो, क्या तुम्हें पता है? प्राइमरी एम ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इज टू ऑब्टेन अ न्यू क्रॉप वैरायटी सुपीरियर टू द एग्जिस्टिंग टाइप. मेन क्या है, प्राइमरी क्या है, प्लांट एम क्या है प्लांट ब्रीडिंग का? एक नया वैरायटी ऑफ क्रॉप होना चाहिए, सुपीरियर होना चाहिए जो एग्जिस्टिंग है उससे, इन ऑल कैरेक्टर. दिस पर्पसफुल मैनिपुलेशन incorporates various objectives which differ from plant to plant. ये हम लोग जो मैनिपुलेट करते हैं पर्पसफुल मतलब हमारे फायदे के लिए, इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, कुछ नुकसान भी हो सकते हैं जो अलग अलग प्लांट टू प्लांट डिपेंड करते हैं. सम ऑब्जेक्टिव आर लाइक यील्ड कितना क्वांटिटी कम हो रहा है, द क्वालिटी कम हो रहा है या रेजिस्टेंस हो रहा है, लाइफ साइकिल, लाइफ स्पान या लाइफ साइकिल कम हो रहा है या बढ़ रहा है. while some objective will differ on the basis of the type and use of plant. तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम लोग जो मैनिपुलेट करते हैं, उसमें नुकसान भी हो सकता है. Look at profit, you also must look at loss. Every coin has two sides. ठीक है? हर कॉइन का दो साइड होता है. अगर प्रॉफिट है तो लॉस भी हो सकता है. Plant breeding is a method of altering the genetic pattern. जो genetic pattern है उसको alter करेंगे. What is alter? Manipulate करेंगे, existing से थोड़ा अलग करेंगे. To increase the value and utility of human welfare. इसलिए human being को पहले जमाने में ना खाना नहीं मिलता था, दो population कम था. India is an agricultural country, but लोगों को खाना उतना नहीं मिलता. अभी इतना मिल रहा है. क्यों? Because of improvement in the food technology. Plant breeding is done to increase the crop yield, improve quality, increase tolerance to environmental stresses, make the plant resistant to pathogens, and increase tolerance to insect pests. Green Revolution was the result of sequence of scientific breakthrough and development activities that successfully fought hunger by increasing the food production. Seeds with superior quality, use of chemicals,
सीड्स जो अच्छे क्वालिटी के हैं उनको यूज करना है। फिर यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर, वो केमिकल पेस्टिसाइड जो इंसेक्ट वगैरह का कीड़ों को मार देता है, जिससे केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल जो प्लांट को देंगे तो प्लांट का ग्रोथ होगा। एंड मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड सपोर्टिंग मॉडर्न फार्म मशीनरी। नाउ अभी मल्टीपल फार्मिंग मेथड मतलब क्या, अभी तुमने राइस लगाया तो अगली बार राइस नहीं कुछ और लगाओ, ठीक है। तो वो हो गया अलग अलग फार्म मेथड। मॉडर्न फार्म मशीनरी, अभी देख लो इरिगेशन सिस्टम इन varieties. In fact, plant breeding dates back 1,000 years ago. The present day crops are result of domestication and acclimatization. ये जो 10,000 साल से जो लोग करते आ रहे हैं ना, do you know different methods of plant breeding include introduction, selection, hybridization, mutation breeding, polyploidy breeding, molecular plant breeding, tissue culture, recombinant DNA technology and single cell proteins, etc. थोड़ा इसको पढ़ो अच्छे से वापस एक बार। Know the scientist Dr. Norman E. Borlaug, an American biologist, the man who saved 1 billion lives, was honored for his work in the Green Revolution, saving millions of lives in famine in India, Mexico and Middle East. So वो सिर्फ अमेरिकन था, लेकिन वो सिर्फ अमेरिका के बारे में नहीं सोचता था, वो पूरे वर्ल्ड के बारे में सोचता था। वर्ल्ड में जिधर भी पुअर लोग हैं, जिधर भी खाना नहीं है, जिधर भी फूड का प्रॉब्लम है, वहां पे उसने काम किया। दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड ग्रीन रिवॉल्यूशन। कोई पता एंड प्रिजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फूड को सिक्योर करना चाहिए, फूड वेस्ट नहीं होना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना चाहिए। इंडिया में बहुत डेवलप न्यू वेराइटीज ऑफ व्हीट लाइक सोनोरा, एनपी 165, ये सब अलग अलग वेराइटीज ऑफ व्हीट इन्होंने डेवलप किया। Hybridization and its technique. It is a chief method that offers great possibilities in the crop improvement than other method. ये सबसे मेन मेथड है बाकी मेथड से। The use of this method is only effective means of combining together the desirable character of 2 or more varieties. By this method, one can create a new genetic combination. इसके मेथड से क्या था, एक इंसान नया जेनेटिक कॉम्बिनेशन बना सकता, and a new genetic variation. It also exploits the hybrid method. Hybrid का हो सकता है इंटर बट सेम स्पीसीज का इंटरस्पेसिफिक, दो अलग अलग स्पीसीज के जीन को यूज कर सकते हैं, एंड इंटरजेनेरिक,
दो अलग अलग जेनेरा का. As partial as parental plant and distant related, such crosses are also called as the wide or distant crosses. Interspecific and intergeneric hybrids are seldom to occur in the nature. Program is as follows. उसका मेन स्टेप क्या था? पहला, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी. जो वेरिएबल कैरेक्टर है, जो अलग अलग हाई यील्डिंग कैरेक्टर है, उसको कलेक्ट करो. Wild species and relatives of cultivated species having desired traits should be collected. And जो collect and preserve करना. Entire collection have all जब collection and इन सिटू मतलब उसी के जगह पे ग्रो करना चाहिए. कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ फॉरेस्ट या नेचर रिसोर्स में, जहां पे जो है उसको एक्स सिटू मतलब सेकेंड ऑफ पेरेंट अभी इवैल्यूएट कर जो आए हैं उसमें हम लोग